Why Osho saying live moment to moment? Because this particular one moment is most important for everyone here. Because what you have you ever thought of what you have with you? Have you ever thought of? Nothing, just one moment. Live this fullest. Then again there will be one moment. Live it with the fullest. Then again one moment. Live with that moment. And this one moment, the total of this one moment is the life. And when one moment will be the last, nobody knows. Enjoy this one moment. एक पल है क्या तुम्हारे हाथ में? कभी सोचकर देखा है? पैसा, पद, प्रॉपर्टी, सब कुछ जो भी है हमारे पास, क्या है ये? कुछ नहीं. क्या है तुम्हारे पास जो सच तुम्हारा है? एक पल. कैसे जीना है डिसाइड कर लो. दुखी होके फेंक दिया पल, शिकायत में फेंक दिया पल, रोकर हंसकर एक तरफ इधर बेहोशी में फेंक दिए पल. कौन सा पल है जो तुमने जिया पूरे होश के साथ, प्रेम के साथ, आनंद या शांति के साथ? दैट्स इट. पूरे जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, एक पल बदल दो बस. कितना आसान है एक पल बदलना. मैं आपको हम सभी इस पल में हैं. कैसे जी रहे हैं? यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर आश्रम है, इतने अच्छे मित्र हैं, आराम से भगवान का नाम भी लेते हैं, आराम से डूबते हैं अपने भीतर, नाचते हैं, गाते हैं. ये एक पल है ना हम जैसे जी रहे हैं. यहां से जाकर भी ऐसे ही हर पल जीते जाओ, बेस्ट टू योर एबिलिटी. लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, नो प्रॉब्लम. बेस्ट टू योर एबिलिटी, ट्राई टू सॉल्व इट. हैव फन इन दैट टू. ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता. जो सीधी लाइन होगी डेड. देखते हो हॉस्पिटल में क्या मतलब है? एक संसारी का ग्राफ दुख सुख, दुख सुख, और एक साधक का ग्राफ आनंद शांति, आनंद शांति, आनंद शांति. यही सत्य है. बस शांति तक रुक जाओ, दुख में मत जाना. आनंद तक रुक जाओ, उत्तेजित मत हो जाना. खत्म. इतना सरल है ये अध्यात्म, इतना सिंपल है. पता नहीं किन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया, किन्होंने इसको मुश्किल बनाया. जीवन जीना एक कला है अध्यात्म. साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इज द साइंस ऑफ लाइफ. Science of spiritualism is what Osho is giving us. We have to just attain this science, understand this science and live it. Very easy. Very, very easy. And I'm not joking. Give little time to yourself. Just little. 10% is enough. And change your 90%. But our problem is this 10% we are not giving. That is the last priority. When I will finish with everything, then if I get time, then this 10% will come. Only thing you have to do is just requesting, make this 10% a priority. That's it. And you will start enjoying the whole 100%. And you are making this 10% last priority, you are not living this 90%, and this 10% is also not coming. Only small thing. Here we are only talking about the practical things. I don't believe in theories. Theories are there after you experience, to explain. But theories are not everything. Experience it, then theories are there to back up. Yes, you are in the right direction. Theories are all the Shastra, all the Granths, all the spiritual books are just a milestone, showing you that this is the milestone where you are going, you are on the right track. That's it. Because all Buddha, Osho, all the enlightened masters, what you are experiencing, they have expressed in the books. You are experiencing, you are reading it, you are confident that I am on the right track. That's it. But what is the mistake? We are reading the Granthas, we are reading the spiritual books, and we are thinking this is the ultimate, that's it. But they are all in the mind. No experience.
The best part is experience in your nothingness. Oh, beautiful. Then when you go to the granthas, to the books, to the Google, to the knowledge, to the scriptures, to the all saints sharing, then you find that, oh yeah, what I am experiencing, they have also experienced it. Now you have more confidence to walk in this path of the darkness to the light. Just do it. And then space, now you experience the sound from now, because many of the friends are new. Just experience the sound. And you know, people are creating hype for this sound also. The Omkar. I will make you listen the technique what Osho has said, which Lord Shiva has given to Ma Parvati. 4 minutes. He's explaining how to listen this sound. So easy. Why people are making this complicated? 4 मिनट में ओशो ने नाच सुनाया. 4 मिनट में, सिर्फ 4 मिनट में आप नाच सुन सकते हो. ओशो ने भी कहां से सुनाया? विज्ञान भैरव तंत्र की विधि है. भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया. और हम इस नाच को मिस करते हैं. और ये आकाश जो हमने एक घड़े की तरह भीतर आकाश, फोकस मत करना, आकाश की तरफ आया, इसमें ये गूंज रहा है. ये सोर्स है, एक डायमेंशन है. आपने स्पेस को फील किया, आपने नाद को फील किया. इजी. आपने स्पेस को फील किया, आप प्रकाश को फील कर सकते हो. इसमें ज्योति भी है. बट लेट्स टॉक अबाउट ओनली साउंड, बेसिक. बस इतना महसूस करना है. ये सिर, ये घड़ा है, उल्टा पड़ा है कंधों पर. हमेशा इसको याद कर लो. अपने सिर को उल्टा घड़ा मानो जो उल्टा पड़ा है और बीच में से खाली है. और इस खालीपन से अपने आप को जोड़ दो. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट द हेड, दिस इज द एम्प्टी पॉट अपसाइड डाउन, एम्प्टी, एंड दिस एम्प्टीनेस इज योर कॉन्शियसनेस. ऑलवेज एसोसिएट योर एम्प्टीनेस, दैट्स इट. कितना सरल है. थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा प्रयास. मैं अक्सर कहता हूं, आश्रम में आने की जरूरत क्यों है? ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, घर बैठ के कर सकते हो. क्यों आने की जरूरत है? इसलिए कि 6 दिन जब आप यहां रहते हो या 15 दिन रहते हो, इस जीवन शैली का प्रैक्टिस करते हो. टोटली डिवाइन लाइफ, लविंग एटमॉस्फेयर, डिविनिटी, हर समय ध्यान, हर समय. उसके बाद जब संसार में जाके 4 महीने 6 महीने जियोगे तो ये साथ चलेगा. फिर तुम इसको अपने जीवन में ला सकते हो. मैं हमेशा कहता हूं, यहां प्रैक्टिस करो जैसे कोई एक्टर प्रैक्टिस करता है एक्टिंग की, और फिर स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है. ये संसार हमारा स्टेज है जहां हमने परफॉर्म करना है. अच्छी तरह से परफॉर्म करो ना, जो रोल करना है. एक्टिंग भी ऐसी करो ना जिस एक्टिंग से सब कुछ मिले. घर परिवार में, काम की जगह में. क्योंकि यहां प्रैक्टिस की, वहां परफॉर्म करो. You practice in the ashram and perform in the life. And then with the carry on, you do the Zoom session, 1 session a day, maybe 4 days in a week, enough. So that reboosting. Itna sa time dena bas. Is it not possible to come 6 days in 6 months and do 1.5 hours staying in the house and make your transform your life completely? Is it not possible? Tell me. If you can't give this much of time, then there is no solution, darlings. With my love, I request you, just listen to a small suggestion and transform your life. इतना ही निवेदन करता हूं, इतना सा करके देखो 6 महीने. और अगर कुछ बदल जाए तो जीवन का हिस्सा बनाना. नहीं तो 6 महीने कौन सी बड़ी बात है 70, 80, 100 साल की जिंदगी में. समझ लेना 6 महीने ऐसे दे दिए, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन हां, ऐसा मत करना, एक चीज मानो, दूसरी चीज छोड़ दो. क्योंकि ये चेन है, जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल की चेन होती है. अगर लिंक्स जुड़े हुए हैं तो साइकिल चल रही है. अगर एक लिंक तोड़ दो, साइकिल नहीं चला सकते. इसको कंप्लीट पैकेज को ले लो. स्पेस के साथ एसोसिएशन, साउंड के साथ एसोसिएशन, अवेयरनेस, दैट्स इट. यहां 6 दिन, घर जाकर 1 मिनट, हम यहां हैं क्यों?
अपने जीवन को और सुंदर बनाने के लिए। मैं सिर्फ एक लाइन में परिभाषा देता हूं, ध्यान क्या है? जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। व्हाई यू डू मेडिटेशन? ओनली टू एनहांस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट्स इट। करोगे क्या? ये बता दो बस मुझे आज। जिस परमात्मा को पागलों की तरह हम ढूंढ रहे हैं, कल को तुम्हारे सामने आके कह दे कि मैं भगवान हूं, तुम विश्वास ही नहीं करोगे, पहली बात तो। और उसने उसे कह दिया कि मुझे घर ले जाओ, और मुसीबत, क्योंकि तुम घर नहीं ले जा सकते उसे। करोगे क्या ये बता दो। इसका मतलब वैसा भगवान नहीं है जैसा है, क्योंकि ना तुम उसे विश्वास करोगे, ना तुम घर ले जा सकते हो। इसका मतलब वो किसी और रूप में होगा ना, जहां ये दिक्कत ना है कि मैं कहीं ले जा सकूं। कहां ले जा सकूं? इस घर में, अपने दिल में, इसमें छुपा सकूं। कठोपनिषद में ओशो साफ कहते हैं, अंकुष्ट बात, कहां छुप जाऊं? स्टोरी सुनाते हैं। सबने पूछा कि परमात्मा कहां है, सब ढूंढने लगे। भगवान परेशान हो गया, मीटिंग बुलाई कि क्या करूं, ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है मेरा बच्चा बीमार है, कोई कहता है मुझे पैसे चाहिए, कोई कहता है मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैंने तो इंसान बना के गलती कर ली। ये सिर्फ हर समय शिकायत और कामना में है। तब मीटिंग में एक बूढ़े ने कहा, ऐसी जगह जाके छुप जाओ जहां ये तुम्हें ढूंढ ही ना सके, और वहां किसी ने ढूंढ लिया तो वहां कोई शिकायत नहीं होगी। उसने कहा ऐसी भी कोई जगह है? कहा है। कहा उसी के दिल में जाके छुप जाओ। जब वो तुम्हें प्यार करेगा और अपने दिल में बसाएगा, तब उसके पास कोई शिकायत नहीं होगी और कोई कामना नहीं होगी। और इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा भीतर है, अंदर है। तभी जीसस ने कहा टू फाइंड गॉड इज डिस्कवरी, इट्स नॉट इन्वेंशन। ऐसा नहीं कहीं भी ढूंढेंगे कहीं भी मिल जाएगा, वो है, उसको डिस्कवर करना है, अनवील करना है, दैट्स इट। इट्स सो इजी। समझ लो बस एक बार, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ओशो ने इतना सरल किया है अध्यात्म को, सो इजी। थोड़ा सा समझ में आ जाए और थोड़ा कर लो, कुछ जाएगा नहीं। वही जीवन रहेगा, वही काम करना, वही परिवार में रहना, किसी को मत छोड़ना। जीने का तरीका बदल जाएगा बस। बल्कि क्या होगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अगली बार जल्दी पूछेंगे कब जा रहे हो वहां। देखेंगे कभी भी तुम्हें गुस्सा आया, अरे यार ये बंदा तो बदल गया था वहां जाके, अब दोबारा भेजो इसको। 6 दिन रह के आएगा और बदल के आएगा। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लविंग, वेरी interesting. This journey is also very interesting. Just experience it a little bit.